super consciousness state. That is called samadhi. Samadhi is the aim of meditation. And samadhi means complete absorption into ocean of consciousness. In other words, dissolution of your little I into cosmic I. That is called samadhi. If your mind will be stable and inactive, and your intellect will be stable too, and your ego, little ego, will dissolve in its own cause, then that state will come in your life. So be aware about it. Okay, come. When you meditate, think. Your thought should be centralized first. And your mind should be one-pointed. As I was telling you, pure attention on your breath. Automatically, this breath will lead you up to your destination. As you know, in deep sleep state too, when your mind sleeps, become inactive, but that state also, your breath is going on continuously. In Veda, there is very good mantra, hymns, that there are two seers, they never sleep, never sleep. There are some other seers, they sleep. But there are two seers in your body. They are protector of this kingdom of Godhead. Kingdom of Godhead means your body, your life. So Veda declared there are two seers. They never sleep. They always protect this kingdom of Godhead. And those two seers are prana and apana. Inhaling and exhaling. These two. So if you will pay your attention on this moment of breath, automatically your mind will be stable and one-pointed. If you are putting your mind on any different object and you are meditating on any external things, then your mind can't be stable. It will move. So your mind can't be stable because it is very difficult to keep always mind away and put it
on one point. But this your breath is very good object. When you will pay your attention on breath, automatically your mind will be stable. Because mind always think about dearest thing. Whatever more dear to you, that will be better object of mind. So I don't think there is anything dearer and nearer than breath. When we say other person, oh, you are like my breath, it means breath is dearest thing in our life. So when you will put your mind on the breath, automatically it will be one-pointed and it will be concentrated, and one day will come in your life when you will be able to achieve complete absorption into ocean of supreme consciousness. Okay? That is the purpose of meditation. As I told you, meditation in itself is not aim. This is the means through which you can achieve samadhi. Okay? Samadhi means evenness of your intellect. Sama means even. Okay? And intellect or intelligence consciousness without movement. Okay? So evenness of intellect is called samadhi, where there is no any kinds of movement or impulses in your mind stuff. That's called samadhi. As I told many times that in Sankhya philosophy, that is called dhi. Dhi means buddhi, intellect or intelligence consciousness. But in yoga philosophy, that is called chitta. Chitta means same thing. As a buddhi, Sankhya word is buddhi, and yoga philosophy called that chitta. So evenness of intellect means evenness of chitta. Okay? And Patanjali told in his philosophical treatise that yoga's chitta vritti nirodha. When your mind or your mind stuff or chitta become calm and quiet and achieve even state, okay, where there is no impulses, impulseless, that's called yoga. Yoga means samadhi. Okay? That's called yoga. So, in this process, when you are paying your attention on your breath and making your mind stable and being fully aware about cause and effect and paying attention on the cause, okay? Because effect is diverse form. So that is not your, aim of life. So that is not your source of life too. You have no any kinds of relation with diverse world. Okay? Because that is projection. Your relation is with cause, not with effect. Okay? So when you will pay your attention on the cause, automatically you will be one with cause. Okay? And you will go above this diverse form, diverse world. So you will be one with that is called samadhi. And your mind will be stable without any movement, without any impulses. Okay? At that state you will receive energy, lot of energy. Okay? And it doesn't mean that you must do this and sit in this temple and there and anywhere. If you are working in your office and you have 5 minutes only, 10 minutes only, 2 minutes only, at that state also close your eyes and be calm and quiet and pay your attention on that process, that point. Okay?
within 5 minutes you will receive much energy as you are receiving energy in sleeping state. Okay? Within 5 minutes you will receive. Okay? And you will realize that you receive some freshness in your life, in your body, in your mind. Okay? So, because if you are removing 2 minutes only restlessness of your mind, then you are doing great work. Okay? So pay your attention and make your mind one-pointed and be one with that cause and realize oneness and ownness with cause. Okay? At that state, automatically you will forget all diverse, objects, whatever you are seeing in the, visible form, gross world, material world, automatically. It is a very great process. And I think nowadays, people are striving for peace. They can't achieve peace, running after money, wealth, and so many other things. They can achieve peace through this process. There is no other way, no other way. And our great seer declared, Nanya Pantha Vidyate Ainaya. There is no other way to achieve highest good beside this. Okay? This is the purpose of religion. When we are doing puja, it means we are trying to concentrate on one object, that is God. Okay? When we are doing any kinds of activities, and Lord Krishna stated in Bhagavad Gita that your whole activities will be worship of Godhead, not only puja. If your mind is, related with that supreme cause. Mahamanuswar Yuddhacha, he told, put your mind in me and try to fight. That your fighting will be worship too. That fighting will be worship. You are killing, yes, in battlefield, but that will be my worship. That can't bound you, it can't be seen. If you are doing that kind of work and putting mind in me, then if your mind is in me, then your all work will be my worship. He taught in Bhagavad Gita. Very great teaching. And how it can be, and he told in 15th chapter of Bhagavad Gita that whatever you are seeing in the world, that is nothing but my own projection. I projected myself into four, sentient and insentient. And sentient is imperishable, stable one, and insentient appear into diverse form. That is movable. So movable and non-movable, both are my own projection. Okay? And I am teaching same philosophy, and I am describing his message in your own language. Okay? So now I will start my daily course, 15th chapter of Bhagavad Gita. Shri Krishna Vande Jagat Gurum. 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 Om Vasudeva Sutam Devam
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी द्वौ विभौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति दाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। मेरी प्रियात्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक कामना। कल आप लोगों को बताया गया था कि भगवान के द्वारा कथित इस सृष्टि में दो प्रकार के तत्व हैं, क्षर और अक्षर। क्षर तत्व संपूर्ण भूत समुदाय है और अक्षर तत्व वह कूटस्थ अविनाशी अव्यय तत्व है। क्षर अक्षर के संबंध में विभिन्न आचार्यों का विभिन्न मत रहा है। जैसा कल मैंने आपको बताया था, भगवान शंकराचार्य जी ने कार्य जगत और कारण जगत अव्याकृत प्रकृति को अक्षर और कार्य जगत को क्षर बताया। भगवान रामानुजाचार्य ने बद्ध और मुक्त जीवों को क्रमशः क्षर और अक्षर बताया। माधवाचार्य जी ने जीव और प्रकृति को क्षर और अक्षर बताया। आचार्य वल्लभ के विचारानुसार परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और सत चित और आनंद ये तीन उसके भाग समझ लीजिए। सतरूप में अभिव्यक्त उसका अंश प्रकृति कहा जाता है, सत और चित रूप में अभिव्यक्त उसका अंश पुरुष कहा जाता है और जो सत चित आनंद स्वरूप है वह स्वयं है। प्रकृति में चित और आनंद नहीं है, पुरुष में केवल आनंद नहीं है। परमात्मा में ये तीनों तत्व विद्यमान है, लेकिन सत तत्व जो है वह परमात्मा का ही सदांश है, जिसे प्रकृति कहते हैं। परमात्मा से भिन्न नहीं है। चित जो है वह भी परमात्मा का ही चिदांश है, जिसे चित कहते हैं। परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये दोनों उसकी अभिव्यक्तियां हैं, एक सदांश अभिव्यक्ति, एक चिदांश अभिव्यक्ति, और वह स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सदांश अभिव्यक्ति जो प्रकृति है उसमें तो कभी चाह होती नहीं परमात्मा को प्राप्त करने की, क्योंकि वहां चिदांश है नहीं, चेतना नहीं है। लेकिन चिदांश जो जीव है उसमें आनंद की चाह बनी रहती है और वो आनंद की चाह को पूर्ण करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है। अज्ञानतावश वो चाहता है कि मैं आनंद यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, उसी में भटकता रहता है। लेकिन आनंद जो उसे मिलेगा केवल आनंद स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म से संबंधित होने पर। तो जब वो आनंद स्वरूप ब्रह्म से संबंधित हो जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है, उसमें
यानी आनंद का आविर्भाव हो जाता है और उसी को मोक्ष कहते हैं। आनंद की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है और भगवत स्वरूपता है। इसलिए उनके विचार से यहाँ क्षर और अक्षर जो शब्द है वह सदांश और चिदांश के लिए है। सदांश जो है प्रकृति वह क्षर है और चिदांश जो पुरुष है वह अक्षर है और परमात्मा स्वयं पुरुषोत्तम सच्चिदानंद है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यह संपूर्ण दृश्य जगत, चराचर जगत परमात्मा का ही विवर्त है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी की अभिव्यक्ति है। और किसी भी प्रकार से बात कही जाए, बात यही कही जाएगी जैसा कि उपनिषद ने हमें समझाया। एक क्षर तत्व है, दूसरा अक्षर तत्व है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर, क्षरात्मानव ईशते देव अन्य। क्षर कहते हैं प्रधान को, उसको आप परमात्मा का सदांश कह लें या परमात्मा की शक्ति कह दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। और अक्षर कहते हैं उस चित्त तत्व को, पुरुष तत्व को, चेतन तत्व को। अब उसे आप परमात्मा का चिदांश कहें या परमात्मा का अभिव्यक्ति कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता, बात एक ही है। और क्षर और अक्षर ये दोनों भगवान ने यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। और जैसे 7वें अध्याय में इन दोनों तत्वों को प्रकृति के रूप में वर्णित किया है, वैसे ही यहाँ पर दोनों को उन्होंने पुरुष शब्द से वर्णित किया है। यहाँ पर क्षर तत्व क्या है? ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत जितने स्वरूप हैं, शरीर हैं, ये सभी के सभी क्षर तत्व में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। और इनके परिवर्तित स्वरूप को भगवान ने यहाँ पर क्षर कहा है। क्षर सर्वाणि भूतानि। यहाँ भूतानि का अभिप्राय संपूर्ण प्राणियों के शरीर से, और ये शरीर अव्यक्त प्रकृति की अभिव्यक्ति है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब आचार्य शंकर ने कहा कि ये तो ठीक है कि ये क्षर सर्वाणि भूतानि ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत तक को क्षर कहा भगवान ने, लेकिन जो अक्षर कहा वो कूटस्थ को कहा, वो अव्याकृत प्रकृति को कहा, मूल प्रकृति को कहा। मूल प्रकृति ही अक्षर है। अब मूल प्रकृति से परे परमात्मा है। यदि इस अर्थ को स्वीकार किया जाए तो यहाँ पर भगवान ने जो आगे चल करके कहा कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो कहते हैं अन्य शब्द का प्रयोग जो है वह इससे विलक्षण तत्व का बोध कराने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो अन्य शब्द का अर्थ विलक्षण तत्व का बोध कराने के लिए है, इसलिए उत्तम पुरुषस्तु अन्य। लेकिन वहां पर उसको उत्तम पुरुष कहने का यानी कोई अभिप्राय नहीं बनता। उत्तम पुरुष तो वह परमेश्वर इसलिए कहा जाता है कि जो चिदांश उसका चित्त में अभिव्यक्त हो रहा है उससे वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमारे सिद्धांत में भी उस परमात्मा के चिदांश की बात की जा रही है, जो चित्त में आविर्भूत हुआ अंश है, जीव तत्व है, उसकी बात कही जा रही है। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर एक शब्द कहा है इमौ लोके, दो इमौ पुरुषौ लोके। इमौ लोके माने इस लोक की बात कर रहे हैं, तत्व की बात नहीं। यहाँ इस दृश्य जगत की बात हो रही है। दृश्य जगत की जो बात है, दृश्य जगत में दो तत्व आपको दिखाई दे रहा, एक क्षर दूसरा अक्षर, एक नाशवान शरीर और दूसरा अविनाशी चेतन। दो
इमौ पुरुषौ लोके, ऐसा शब्द है भगवान का। इमौ माने इस जगत में, यहाँ, और यहाँ इस जगत में जो मूल दो पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो पुरुष का शरीर है आकृति में जो दिखाई दे रहा है, दूसरा वह चेतन तत्व है। इसलिए दो इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन् दैव यानी चरश्चाक्षर एव च, और क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। और इसमें जो कूटस्थ है, कूटवत स्थित है, अचल है, यहाँ चल और अचल ये दो बातें भगवान ने कही है। एक चल है, दूसरा अचल है। तो अचल जो है वह चेतन है और चल जो है वह शरीर है, ऐसा भगवान ने यहाँ पर समझाया। अब इसी को आगे भगवान कह रहे हैं, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, इनसे अन्य कारण रूप में अवस्थित जो परमात्मा है वह उत्तम पुरुष कहा जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष माने उत्तम, जो सबसे परे है, जिससे परे और कुछ नहीं है। पुरुषात् न परः किंचित् सा काष्ठा सा परागति, अक्षरात् परतः पर, अक्षरात् परतः पर, जो अक्षर से भी परे है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो अन्य है इन दोनों से, शरीर और शरीरी से अन्य है। वो अन्य इसलिए कहा कि इन दोनों का वो आश्रय है, दोनों का वो आश्रय है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षर, महाराज जी बताया, क्षरम तो विद्या ही अमृतम तो विद्या। इसी को विद्या और विद्या नाम से भी भगवान ने संबोधित किया है, उपनिषद में कहा गया है। क्षरम तो विद्या ही अमृतम तो विद्या। क्षर अविद्या को कहते हैं और अक्षर विद्या को कहते हैं। विद्या को ही भगवान ने वहां पर जो जीव भूता महाभाव एदम धारते जगत अपनी परा प्रकृति बताई है, और अविद्या को उन्होंने क्षरणशीला अष्टधा प्रकृति कहा है। तो अष्टधा प्रकृति क्षरणशीला है, वो अविद्या है, और अक्षर स्वरूपा जो अविनाशिनी है चेतना शक्ति, वो विद्या है, जीव भूता महाभाव, जिसके विषय में भगवान ने कहा है। तो ये दोनों प्रकृतियों को यहाँ पर भगवान ने पुरुष शब्द से संबोधित किया। इसलिए उत्तम पुरुषस्तु अन्य, इन सबसे उत्तम, इन सबसे ऊपर जो है, उत्तम माने होता है उत्तम, यानी ऊपर से भी ऊपर, जिससे आगे और ऊपर कुछ न हो, जिसके विषय में भगवान ने शुरू में ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा कहा था, वह उत्तम। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो अन्य, अन्य भाव से यहाँ पर संकेत किया है भगवान ने, इन दोनों से भिन्न। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत, उसको परमात्मा ऐसा कहा गया है, कहा जाता है, कहते हैं। परमात्मा इति उदाहृत माने उसको परमात्मा ऐसा कहा गया है। परमात्मा इति उदाहृत, जो सबसे ऊपर है। परमात्मा तो तभी बनेगा जबकि कोई उससे पहले आत्मा होगी। आत्मा से परे है तभी परमात्मा है। तो आत्मा तो बुद्धि को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, एक बार मैंने बताया था आपको, और जीवात्मा को भी आत्मा कहते हैं। बुद्धि मन अहम आदि को जो आत्मा शब्द का यानी प्रयोग किया जाता है, वो जीवात्मा के नाते, उस चेतनांश के नाते ही किया जाता है। तो उस चेतनांश से परे उसके कारण रूप में अवस्थित जो है वो परमात्मा है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत, उत्तम पुरुष अन्य है, इन दोनों से विलक्षण है, दोनों से परे है, उसको परमात्मा ऐसा कहा जाता है, कहा गया है। वो करता क्या है? यह लोकत्रयम आविश्य, जो इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के, आविश्य माने प्रविष्ट, जो इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के विभरती, इन तीनों लोकों को धारण करता है। ये तीन लोक कौन से? भूर्भुव स्व, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिवलोक।
ये तीन लोक है। इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के वह सबको धारण करता है।